Monera protesta, fungi plenty animalia. Okay. जिसमें से plantae start किया हमने. Plantae was further divided into how many parts? Two. Which one? Cryptogams and phanerogams. Cryptogam is further divided into how many parts? Two. Which one? Non-vascular plants and vascular plants. Okay, non-vascular is further divided into Two parts. which one? Thallophyta and bryophyta. Very good. And vascular is divided into two part or one part? Okay. Which one? Pteridophyta. Okay. So now phanerogam is divided into Two parts. which one? Gymnosperm and angiosperm. Okay. Gymnosperm further divided or not? No. Okay. What about angiosperm? Two parts. Which one? Monocotyledon and dicotyledon. Done. Very good. यहाँ तक सबको clear है? Yes. So next, हमने थैलोफाइटा में क्या स्टडी किया? थैलोफाइटा is further divided to how many parts? 3 parts. Which one? Chlorophyllae. Rhodophyceae. Chlorophyllae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Very good. Pigment, which pigment? फटाफट बोलो. Chlorophyceae में which pigment is present? Chlorophyll A and chlorophyll B. Which color? Green. Color. Okay, A and B. And what about Phaeophyceae? A, C and fucoxanthin. And fucoxanthin. A and C. And fucoxanthin. Okay. A, D and phycoerythrin. Chlorophyll D and phycoerythrin. Okay, now tell me the components of all these three. Green algae, brown algae and red algae. Red algae. Okay, very good. Food stored in the form of Starch. Okay. In this? Mannitol laminarin. Very good. In this? Starch and pectins. Sorry? Floridian starch. Floridian starch. Very good. ठीक है, यहाँ तक थैलोफाइटा तो सबको क्लियर है. इसके बाद हमने क्या देखा था? ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में आपने क्या पढ़ा? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या था? Bryophytes are called as amphibious plants. Amphibian. Okay. Bryophyte is called amphibian of the plant kingdom. What do you mean by amphibian? Amphi stands for? Both. Bien stands for? Living. Okay, so bryophytes are live on land as well as in water. Reason क्या है? They depends on the water for what purpose? Reproduction. Okay, very good. Next हमने ब्रायोफाइटा के बाद में क्या किया? टेरिडोफाइटा स्टार्ट किया अभी हम. Types of ब्रायोफाइटा कौन से दो हैं? Liverwort and Moses. Very good. चलो फिर लीवरवर्ट्स हमारा कंप्लीट हुआ तो मोसेस चल रहा था, राइट? Yes. ओके. यहाँ तक सारी चीजें सबको क्लियर है? एक बार रिवाइज हो गया पूरे चैप्टर का? ओके. नाउ लीवरवर्ट्स हो गया था हमारा, मोसेस चल रहा था. मोसेस में भी हमने स्टेजेस ऑफ लाइफ कवर अप कर लिए थे, राइट? प्रोटोनोमस स्टेज एंड लीफी स्टेज. जिसमें हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे. प्रोटोनोमा इज प्रोस्टेट, ग्रीन इन कलर, ब्रांच एंड फिलामेंटस, राइट? एंड आल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल गैमेटोफाइट. वेरी गुड. ठीक है, क्लियर है? चलो अभी जहाँ पे आपको सेक्शन कंप्लीट किए थे ना, स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्रोटोनोमा एंड लीफी स्टेज, उसके नीचे पॉइंट लिखो. मोसेस के अंडर, राइट अंडर मोसेस.
रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन takes place by budding and fragmentation. ब्रायोफाइटा में आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय budding and fragmentation. Okay. Vegetative reproduction bryophyta takes place. Mosses. Bryophyta may be subdivision, that is mosses, takes place by budding and fragmentation. Example लिखो अभी. Example Funaria. Example Funaria. Polytrichum. Sphagnum, etc. अब आपने इसके पहले फनेरिया देखा है बच्चा लोग, डायग्राम देखिए आप लोग. मॉसेस में कैसा होता है ना, कैप्सूल फॉर्मेशन होता है. ओके, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स हम लोगों ने इसके पहले देखो स्पोर फॉर्मेशन देखा था प्रीवियस लेक्चर में. सो कैप्सूल कंटेन स्पोर्स. ओके, स्पोर फॉर्मेशन होता है मोसेस में. तो वहां पे ना अभी आप इसी के नीचे डायग्राम बनाओ. दिस इज कैप्सूल. यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग. क्लियर है, दिख रहा है सबको? Yes. Okay, so this part is called as gametophyte. जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस भी देखा था. And this part is called as sporophyte. This is your capsule. सबको अच्छे से दिख रहा है? सब लोग बनाओ. Miss, बंद हो गया. बंद हो गया? अभी विजिबल है? Yes. Yes. Okay. And here this part is main axis. तो कैप्सूल के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट्स? इट कंटेन्स स्पोर्स. स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इसके पहले भी देखा था ना हमने. लिख दो फनेरिया.
Done? No, ma'am. Done, students? Yes. Everyone? Yes. Aishwarya, Akshay, Manali, Anuj, Khushi? All are present now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, done everyone? Yes. Okay, so let's see the mosses again. So from the beginning, we have studied that mosses are the advanced members, right? And they also possess erect plant body. In mosses, we have also studied the gametophytic phase, which is divided into two parts. One is protonomous stage and the another one is leafy stage. So protonomous stage is the first stage and leafy stage is the second stage, right? Then we saw the vegetative reproduction in mosses take place through the two options. One is budding and the another one is fragmentation. Please underline both these. Then next, here we saw the example of Anaria, Polytrichum and Sphagnum. We also know that in mosses, the capsule are present which contains the spores. Clear? Till here, any doubt to anyone? Students, till here, any doubt to anyone? No, ma'am. Is everything clear? Yes. Okay, then let's start with Pteridophyta. Give the heading of Pteridophyta. Sorry. So here, pteron stands for feather and phyta means again plants. So सबसे important point टेरिडोफाइटा में क्या आएगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पे ब्रायोफाइटा और इसमें टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा में डिफरेंस क्या है? एक चीज आपने नोटिस की होगी व्हाइल डूइंग द बाइफर्केशन भी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी अच्छे से बताया था कि ये क्या है, वस्कुलर प्लांट, राइट? वो दोनों किसके अंडर कवर हो रहे थे? नॉन वस्कुलर प्लांट्स के. एम आई करेक्ट? So Yes. pteridophytes are the first vascular plant on land. जिसमें क्या है? vascular मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Conducting having tissues. conducting tissues. Very good. In conducting tissues में क्या पढ़ा था हमने? Xylem, phloem, pestis. And phloem. Okay. Xylem क्या conduct करता है? Water. Water. And phloem? Food. Food. Okay. Very good. So ठीक है. So pteridophyta are the plant are the first vascular plants which are having conducting tissues, right? ओके Yes. चलो अभी लिखते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स वाइज लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट पॉइंट लिखो, टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स are the first vascular plants. Pteridophytes are the first vascular plants that consist conducting tissues that consist conducting tissues. That consist conducting tissues
that is xylem and phloem. And pteridophytes and pteridophytes also considered as the first successful terrestrial plants, the first successful terrestrial plants with with true roots, stems and leaves. इसके पहले याद है ब्रायोफाइट्स में हमने लाइक स्ट्रक्चर्स देखा था, राइट? जब हम लोग तीन मेन डिफरेंस देख रहे थे बिटवीन द थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, वहां पे हमने देखा था दैट थैलोफाइटा कैसा थैलस बॉडी, राइट? And whereas Bryophyta having the like structures like true-like structures, root-like rhizoids. याद है? Do you remember? Yes. Yes. Okay, so pteridophytes are the first successful plants which are having true roots, stems and leaves. इसके अलावा they are also the first vascular plants as well as the first successful terrestrial plants. Done this point? Yes. Yes. Okay, next point लिखो. Pteridophytes found in cool, 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 comma, damp, 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 and shady places, SHADY, shady, जहाँ पे shades present है. Done? Done, students? Yes. Yes. Now, next point लिखो. Pteridophytes contain pinnate leaves, PINNATE, pinnate. Pteridophyte contains pinnate leaves, मतलब feather like leaves है, okay? बहुत ही लाइट वेट और एकदम पतले पतले रहते हैं ना, देखो कहीं आप देखते हो ना. फर्न्स देखा है आपने फॉर एग्जाम्पल? फर्न्स कैसे होते हैं? छोटे 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 ऐसे, जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल प्लांट के उसमें भी यूज होते हैं. So this is feather like pinnate leaves. Done? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. स्पोर्स में भी यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने मिलता है. वन इज होमोस्पोरस and the another one is heterosporous. I hope you all, everyone now know the difference between homo and hetero. Homo means similar in structure and hetero means different, right? तो जो स्पोर्स पढ़े थे हमने, यहाँ पे आपको दो वेरिएशन देखने मिलता है, होमोस्पोरस एज वेल एज हेटेरोस्पोरस. डन? नाउ नेक्स्ट पॉइंट में लिखो. हो गया ये सबका? Yes. ओके. नाउ अभी यहाँ पे ना टेरिडोफाइट्स में लीव्स में भी दो वेराइटी है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो. ओके, सो माइक्रो का भी हम लोग एग्जांपल लिखेंगे और मैक्रो का भी. सो माइक्रो मीन्स एक्सट्रीम स्मॉल, फाइलस मीन्स स्टैंड्स फॉर लीव्स. सो माइक्रो एंड मैक्रो फिल्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल
माइक्रोफिल्स का एग्जाम्पल लिखो, सिलेजिनेला, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ओके, प्लीज रिमेम्बर इट। एंड मैक्रोफिल्स का एग्जाम्पल है फर्न्स एंड नेफ्रोलिपिस। ओके, सो लीव्स में भी आपको दो वेरिएशन देखने मिलता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में सिलेजिनेला याद रखना और मैक्रो में फर्न्स एंड नेफ्रोलिपिस। इज इट विजिबल टू एवरीवन? डन एवरीवन? Yes. ओके, सबका हो गया? रफ करूं मैं? Yes. अब अगेन स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी था दैट वाज गैमेटोफाइट, राइट? आर यू ऑल रिमेम्बरिंग और नॉट? So here the main body part, main plant body is sporophyte. Okay. So next point लिखो, the main plant body is sporophyte. The main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. ब्रायोफाइटा में याद है ना, गैमेटोफाइट पढ़ा था हमने। हैप्लॉइड इज द डोमिनेंट फेस, राइट? हैप्लॉइड में गैमेटोफाइट, दूसरा जो डिप्लॉइड और रेड्यूस फेस था दैट वाज रिसेसिव। सबको याद है? Yes. Yes. ओके, then this the main plant body is sporophyte, which is differentiated into true root, stem and leaves. Next लिखो, this organ possess a well differentiated vascular tissue. This organ possess a well differentiated vascular tissue. Done? Yes. Now अभी हम डायग्राम बनाएंगे फंस का। फन इज द कॉमन नेम, ओके, एंड नेफ्रोलिपिस इज द साइंटिफिक नेम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। ऊपर का रफ करूं स्टूडेंट्स? हो गया आप लोगों का लिख के? Yes. So here we see the roots, hair-like structures, okay. यहाँ पे भी little hair-like structures present है।
Then here, अब यहाँ पे भी ना स्टूडेंट्स ब्रांचेस टाइप आपको देखने मिलेंगे. So it is like little hair-like structure. Sorry, feather-like. That is very light. तो ये आपका रूट, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज योर राइजोम्स. This part is called as frond. और यहाँ पे जो लीव्स है एक एक दैट इज कॉल्ड एज ब्लेड. दिख रहा है सबको? Yes. ओके. So this is the diagram of ferns. That is the common name. Scientific name of ferns is Nephrolepis. Okay. हुआ सबका? Yes. ओके, रफ करूं? Yes. Okay, then give next heading. अभी ना हम लोग जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे. ओके. यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट स्टूडेंट्स? So now we'll see the features of major plant group जो कि phanerogam के अंदर कवर अप होते हैं, right? Gymnosperm and angiosperm. So give the heading of salient features of major plant group under phanerogams. जिसमें से हमारा फर्स्ट वन आता है जिम्नोस्पर्म्स. ओके, सो अगेन जैसे कि मैंने बोला हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ मीनिंग है. सो जिम्नो स्टैंड्स फॉर नेक्ड, दैट इज विजिबल. नेक्ड मतलब होता है ओपन, स्पर्म मतलब सीड्स. याद है फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. सो यहाँ पे नेकेड सीड्स है. नेकेड सीड्स है मतलब देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर. Flower. यस. सो डन. Yes.
ओके तो अभी हम लोग इसमें पॉइंट्स लिखने जाएंगे, कैरेक्टर सारे के सारे डिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट विल सी कि इसके कितने जेनेरा एंड कितने स्पीशीज है जिम्नोस्पर्म के। ओके सो पहले हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखेंगे। सो देयर इज अबाउट 70 genera and 100 species of gymnosperm in world. Okay, about 70 genera and 100 species in world. अब इसमें से अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे कितने जेनेरा एंड कितने स्पीशीज है? 16 genera, 7 out of 70, 16 genera, and out of 100, 53 species of gymnosperm present in India. समझ में आया इतना सबको? So write in a concise way जिसमें आपको स्पेस भी कम लगे और स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बना के लिखो ताकि बाद में पढ़ने के लिए अच्छा हो, इजी हो। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? so there is, अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करो तो there is how many genera? 70 genera and how much species? 100 species in world. Out of 70 genera in India, 16 genera is present and 53 species. समझ में आया इतना सबको? Yes. Okay. Now next point लिखो। Gymnosperms are evergreen, हमेशा हरे भरे रहते हैं, evergreen, कॉमा shrubs, herbs वगैरह पता है आप लोगों को? जो शॉर्ट ट्रीज रहते हैं that is called as shrubs. evergreen, कॉमा shrubs और woody trees. ठीक है, so gymnosperms are evergreen, shrubs और woody trees. नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जिम्नोस्पर्म्स आर जिम्नोस्पर्म्स आर प्रिमिटिव ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी आपको पता है ना, एडवांस लेवल तो एंजियोस्पर्म है, राइट? सो जो भी पहले आया, अगर आप कोई भी बाइफर्केशन कर रहे हो, कोई भी डिवाइडेंस लिख रहे हो, जो भी पहले है दैट इज ऑफ प्रिमिटिव। जैसे कि हम लोगों ने 5 किंगडम्स में देखा था, मोनेरा वाज द प्रिमिटिव, राइट, एज कंपेयर्ड टू 4 अदर किंगडम. So here gymnosperms are primitive groups of flowering plants. Okay. Next अभी यहाँ पे 2 टाइप के रूट्स प्रेजेंट है इन जिम्नोस्पर्म. रूट सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स. तो यहाँ पे ऐसे लिखो या फिर इसके पहले ऐसे लिखो, इन जिम्नोस्पर्म रूट सिस्टम में 2 टाइप देखने मिलेगा आपको. एक है टैप रूट सिस्टम एंड द अनदर वन इज फाइब्रस. तो टैप रूट में स्टूडेंट्स कैसा होता है, अभी आप नॉर्मली कोई प्लांट निकाल के देखोगे ना, रोज या वगैरह या कुछ, तो यहाँ पे जो भी रूट ऐसे थोड़े से थिक होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम. ठीक है. और फाइब्रस में जस्ट अपोजिट टू इट हेयर लाइक होते हैं. फाइब्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पहली बात तो एडवेंटिशियस रूट. वीट का रूट देखा है आप लोगों ने? वीट गेहूं वगैरह का देखा है रूट? तो इट इज ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पतले पतले एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट. और टैप रूट बोला तो आप जैसे नॉर्मली जो रूट देखते हैं ना, कोई भी प्लांट ले लो, रोज वगैरह या फिर घर पे कोई भी प्लांट होगा, तो उनके रूट्स कैसे होते हैं, ऐसे जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ऐसे जाके डिवाइड. एंड फाइब्रस इज लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर. समझ में आया इतना? So in gymnosperm there is 2 types of roots present. One is taproot and the another one is fibrous root.
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मनाली, तानिया, Yes. अनुज, ओके, तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन जिम्नोस्पर्म ओवरीज आर एब्सेंट। अब सीड्स नेकेड है तो ओवरी भी कैसे हैं? दे आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Xylem are present. Xylems are present मत लिखो। Xylems are with tracheids. तो xylem के अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्रैकेट्स। अंडरलाइन कर लो हाँ इसे, ट्रैकेट्स को। एंड phloem are with sieve tubes. अभी आगे हम देखेंगे। अभी सिर्फ इतना आप लोग लिखेंगे। तो xylem में आपके क्या प्रेजेंट है? इन xylem tracheids are present and in phloem sieve tubes are present. Okay. डन स्टूडेंट्स, इतना दोनों भी अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। xylems are with tracheids and phloem are with the sieve tubes. Next, plant body is sporophyte. प्लांट बॉडी यहाँ पे क्या हुआ? स्पोरोफाइट। इसके पहले वाला भी क्या देखा हमने? टेरिडोफाइटा। वहां पे प्लांट बॉडी कैसा था? स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइटा में कैसा था स्टूडेंट्स? बोलो। डोमिनेंट फेस क्या देखा था हमने? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट था या स्पोरोफाइट था? Am I audible to everyone? Yes. तो क्या था बच्चा? बोलो। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या देखा था हमने? जो मेन प्लांट बॉडी था दैट वाज गैमेटोफाइट, राइट? In Pteridophyta, we saw the main plant body is sporophyte, and in Gymnosperm as well, the main plant body is sporophyte. Done. अब since जैसे कि मैंने आप लोगों को सेलफोन का एग्जांपल दिया था, एक बार एडवांसमेंट आ गया तो वापस से प्रिमिटिव टाइप में जाएगा क्या? नो। तो टेरिडोफाइटा में एज वी सॉ कि ऑलरेडी जो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स है वो मतलब फॉर्म होना शुरू हो गए स्टार्ट। तो जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा है क्या? वापस से थैलस बॉडी दिखाएगा या फिर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे? नो। तो एक बार अगर एडवांसमेंट आ गया, सो हियर आल्सो ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आर प्रेजेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Body is divided into true root, stem and leaves. Body is divided into true root, stem and leaves. Okay, done. अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स टैप रूट ज्यादा प्रेजेंट होते, तो जहाँ पे आपने रूट का लिखा था ना, रूट सिस्टम ने हमने दो लिखा था ना, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस। तो टैप रूट के इधर लिखो मोस्टली। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं? टैप रूट सिस्टम आर मोस्टली प्रेजेंट। नया पॉइंट लिखने से अच्छा उसको उधर ही लिख दो। डन। Yes. ओके, अभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है हमारा, तो अभी आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बिकॉज जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स हैं दे आल्सो शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। Together live. वेरी गुड। सो रूट्स ऑफ, यहाँ पे लिखो, रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स shows symbiotic association.
Two plants are living together. ओके, जिसमें हमने दो एग्जाम्पल हम देखेंगे. सो एक है साइकस रूट, दूसरा है पाइनस रूट. ठीक है, तो साइकस प्लांट जो है उनके रूट्स भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं. किसके साथ वो देखेंगे. एंड दूसरा जो है दैट इज पाइनस रूट. ये किसके साथ दिखाता है. इतना लिखे, इतना समझ में आया. रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें से दो देखेंगे हम. एक साइकस रूट, दूसरा है पाइनस रूट. अब जो आपका साइकस रूट है दैट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद डैश. तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, इसे ध्यान से सुनो, ध्यान से लिखना अच्छे से. So cycus root show the symbiotic association with blue-green algae. Okay, BGA means blue-green algae. या तो फुल फॉर्म में लिख लो, blue-green algae. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पाइनस रूट आपका ब्लू ग्रीन अलगे के साथ दिखाता है क्या. बिकॉज ये पॉइंट्स जब क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर इन द एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आएगा तो इट विल बी लाइक कि हाँ पाइनस रूट शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन अलगे, साइकस रूट, या फिर साथ में ऑप्शन एक और दिया होगा. ओके, सो साइकस रूट शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद व्हाट. ब्लू ग्रीन अलगे. ओके, वेरी गुड. नाउ विल सी पाइनस रूट आपका किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है. फंगाई. ओके, विच इज कॉल्ड एज माइकरहिजा. माइकरहिजा फंगाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाता है, जो कि एक एंडोफाइटिक फंगाई है. ओके, सो माइकरहिजा आपका क्या, इट इज एंडोफाइटिक. इसके पहले हम लोगों ने एपिफाइटिक देखा था, याद है. Yes. Okay, so endophytic is like inside the another plant, right? तो आपका जो पाइनस रूट है उसके इधर माइकरहिजा प्रेजेंट है, विच इज एंडोफाइटिक फंगाई. समझ में आया. तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दिस टू. साइकस रूट shows the symbiotic association with blue-green algae, and pinus root shows the symbiotic association with mycorrhizae, which is an endophytic fungi. Okay, लिखे, ये लिख के लो. डन. हो गया स्टूडेंट्स. Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अभी जो जिम्नोस्पर्म्स इनके स्टेम कैसे हैं, दे आर इरेक्ट एंड सॉलिड एंड सिलिंड्रिकल. ओके, अब साइकस प्लांट तो आई होप सबने देखा होगा, गार्डन्स वगैरह में होते हैं. देखो, ऑर्नामेंटल के लिए भी साइकस इज आल्सो यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट. अच्छा दिखता है ना वो, तो गार्डन्स में मोस्टली आपको देखने मिलेगा साइकस प्लांट. तो लिखो अभी, स्टेम इज इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट, स्ट्रेट है, और सॉलिड है, सॉलिड सिलिंड्रिकल. सॉलिड एंड हॉलो के बीच में डिफरेंस समझते हो ना स्टूडेंट्स. हॉलो मीन्स अंदर से खोखला. फॉर एग्जाम्पल बाम्बू स्टिक देखा है आपने, बाम्बू, तो दैट इज हॉलो. उसके स्टेम्स कैसे होते हैं बाम्बू के, दे आर हॉलो. और इसके कैसे, सॉलिड. अंदर से कैसे है वो, अंदर भी वुड प्रेजेंट है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इन जिम्नोस्पर्म्स secondary growth is seen.
ये सब आप लोगों ने पहले 10th में किया होगा ना, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ. So in gymnosperm, secondary growth is seen due to the presence of cambium. So cambium basically is responsible for the secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब समझते हो स्टूडेंट्स? प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या होता है? प्लांट्स इंक्रीजिंग इन हाइट. ओके, दिस इज योर प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीजिंग इन गर्थ. गर्थ मतलब समझते हो? अब ये जो डायामीटर है ना, ये भी बढ़ रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ, जिसके लिए कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल. क्लियर है? तो कैम्बियम जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहां पे गर्थ का भी इंक्रीज होता है. So that is secondary growth. So secondary growth can be seen in gymnosperm due to the presence of cambium. Cambium को underline कर लो. Done? Okay. Now अभी root हो गया, stem हो गया. Now we'll see about leaves. तो यहाँ पे leaves कैसे हैं? लीव्स भी आपके दो टाइप के प्रेजेंट है. ओके, यहाँ पे लीव्स आर डायमॉर्फिक. डाय मतलब दो, मॉर्फिक स्टैंड्स फॉर मॉर्फोलॉजी. ओके, मॉर्फोलॉजी समझते हो ना? आपका स्ट्रक्चर वगैरह जो है लीव्स का. ओके, सो डायमॉर्फिक टू टाइप्स की मॉर्फोलॉजी दिखाते हैं. दैट इज divided into two parts. One is called as foliage leaves and the another one is scale leaves. इतना लिखो, फिर दोनों का डिफरेंस देखते हैं. आपका जो फोलिएज लीव्स है बच्चा लोग, इट इज ग्रीन, सिंपल एंड नीडल लाइक. ठीक है, नीडल समझते हो ना? तो इट इज वेरी शार्प लाइक दिस. ग्रीन, सिंपल, नीडल लाइक. So it is green, simple and needle like. और इसके साथ ही it is pinnately compound. Done इतना? Whereas your scale leaves are brown, small छोटा है और brown in color है. Scale leaves are small and brown in color. So here we cover two different types of leaves. One is foliage leaves and another one is scale leaves. Foliage leaves आपका कैसा है? एक चीज याद रखना, it is needle like structure. ठीक है, scale leaves कहते हैं इसे small and brown in color. Foliage leaves आपका green, simple and needle like structure है. Done this? यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट स्टूडेंट्स? Say either yes or no. Hello? Am I audible to you all? Yes. Say at least yes or no students. आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी डाउट है और is everything is clear to you? Yes. Okay, fine. So should I rub it? Yes. Done Yes. everyone? Okay. So now we see स्पोर्स. जैसे कि हमने देखा था, तो यहाँ पे भी जो स्पोर्स है, आपको अगर याद होगा तो इसके पहले हम लोगों ने वो देखा था, एंथेरोजाइट्स और वो. So male and female. So यहाँ पे spores are produced. That is also two types.
तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, एक होता है मेल, another one is female. Male वाला is called as microsporophyll, and female वाला is called as megasporophyll. So spores में भी spores are produced, that is male spores are called as microsporophylls because male वाले spores कैसे होते हैं, they are small, okay, so that is why micro. समझ में आ रहा है आप लोगों को? This is micro because जो male spores होते हैं they are small in size, whereas जो female spore है आपका that is called as megasporophylls because ये बड़ा है as compared to that, so it is megasporophyll. समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लीज इसे लिख लो, नोट डाउन कर लो. Done? Yes. Okay, so here we complete with the topic of angiosperm, sorry gymnosperm. यहाँ पे जिम्नोस्पर्म हमारा कंप्लीट होता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग अभी वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जिम्नोस्पर्म हमने कहाँ से देखे थे? सो सैलिएंट फीचर्स में पहले तो हमने स्पीशीज और जेनेरा डिस्कवर किए. पूरे वर्ल्ड में कितने जेनेरा हैं बच्चा लोग? कम ऑन, अभी आई वांट क्विक आंसर्स फ्रॉम यू ऑल. नाउ वेक अप. 70. 70. यस. एंड हाउ मच स्पीशीज? 100. 100. सॉरी, वहां पे करेक्शन है. दैट इज नॉट 100, दैट इज 1000 स्पीशीज. ओके, उसको थोड़ा सा 1000 कर लो, करेक्शन कर लो. About 70 genera and 1000 species present in all over the world. Okay, कितने species है? 1000. 1000. Yes, very good. Out of that, in India, how much genera and how much species present? 16 genera, 53 species. Very good. Okay, very good. Now we saw the two types of root system. One is taproot and the another one is? Fibrous root. Fibrous root. Okay, fibrous root आपका कैसा होता है? It is hair-like structure. ये चीज remember रखना. Okay, done. Now Yes. gymnosperms कैसे Yes. हैं? They are evergreen and evergreen हमेशा हरे भरे रहते हैं. इसके साथ ही Shrub. they are Shrubs. woody trees, shrubs और woody trees, right? Yes. इसके अलावा Yes. कैसे टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स है? They are advanced और primitive? Primitive. Primitive. Okay, very good. Gymnosperms are primitive type of groups. Next, seeds हैं आगे कैसे हैं? They are naked or enveloped? Naked. Naked. Okay, very good. Xylem are present with dash. Tracheids. Tracheids. Okay, and what about phloem? Sieve tubes. Okay, very good. These are the important points. Huh? Please remember it. Now, main plant body is dash. Sporophyte. Okay, please remember it because इसके पहले जो previously हमने देखा था that is about thallophyte and bryophyta. Gametophyte was the main plant body. Okay, and in gymnosperm as well as pteridophyta, sporophyte is the main plant body. Okay, clear? Yes. Next, body Yes. is divided into True root. True root, stem, and stem leaves. and leaves. वेरी गुड. अभी जो हमने दो रूट सिस्टम किया उसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? टैप रूट या फिर फाइब्रस रूट? Taproot. Taproot. ओके ओके, वेरी गुड. नाउ वी सॉ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज भी वहां पे हमने दो देखा. वन इज साइकस रूट एंड द अनदर वन इज पाइनस रूट. तो Pinus. पाइनस रूट शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद डैश. Mycorrhizae. Mycorrhizae. Very good. Mycorrhizae is what type of fungi? Endophytic. Okay, very good. And the another one was cycas root. Cycas root shows the symbiotic association with dash. Blue green. Blue green algae. Okay, okay, very good. अभी जिम्नोस्पर्म के हमने stems कैसे देखे थे? It is erect and cylindrical and solid. okay, very good. Solid और hollow का difference सबको clear है? Yes. Yes. Okay, now you tell me
सेकेंडरी ग्रोथ जिम्नोस्पर्म में होता है या नहीं होता है? होता है ओके, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? कैम्बियम Okay, very good. Secondary growth can be seen in gymnosperm due to the presence of cambium. Clear hai? Okay, now we Yes. saw the two Yes. types of leaves. Leaves are dimorphic, right? Two types of morphology. One is, Foliage and leaves. scale leaves. scale and the leaves another one is scale leaves. Okay. Foliage leaves कैसे हैं students? Green, simple and and needle-like. needle-like. Okay, very good. Needle like याद रखना, that is important point. और आपके scale leaves कैसे? It is small and brown in color yes, small and brown in color. इसके बाद हमने spores देखा. Spores are produced two type. One is male spores and the another one is female. Male spores are called as, microsporophyll why? Because they are small in Size. structure, size or structure. हाँ, sorry, size. Okay, and the female is called as, Megasporophyll. okay, very good. तो सबको यहाँ तक सारी चीजें clear है? yes Okay, Yes. so we end the lecture here. अभी जो next lecture होगा कल हमारा, वहाँ पे we'll start with the angiosperm. Okay? अभी आप लोगों का होमवर्क है स्टूडेंट्स कि अभी तक जो भी हुआ है आप रिवाइज करोगे, इसके साथ ही एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे अटेम्प्ट करने का कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. ओके, बिकॉज मोर देन 50% चैप्टर इज कवर्ड अप नाउ. कल का मे बी लास्ट लेक्चर होगा, तो अभी आप लोग ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कितने क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व इट. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.